evening, everyone. My name is Ayushi, Assistant Professor from IT Department. Today I am here to teach you Programming for Problem Solving, which is a first year subject. It is allotted subject code BCS 101 for first semester, and in second semester it will be having BCS 201. So from today we will start Unit 1, and first topic of Unit 1 is Introduction to Computer System. But before going ahead, it is very important to understand the syllabus of PPS. Unit 1 is entirely theoretical, and in programming C, in this particular subject, programming for problem solving, we will do programming solely on C language. For that, in this particular subject, we have dedicatedly designed this particular syllabus. University has designed this syllabus keeping in mind Turbo C and Turbo C++ as a platform to run C codes. So to begin with, Unit 1, we are taking Introduction to Computer System as our first topic. Firstly, it is very important for us to understand what is a digital computer. Very first topic and very important topic for first year students. Every year, a question of 7 marks must come from this particular topic. डिजिटल कंप्यूटर पर इंटायरली थियोरेटिकली क्वेश्चन डिजाइन होता है, इसका हमें कंपोनेंट्स डिफाइन करने होते हैं, और क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए अलॉटेड है, तो आपको बस कंसेप्ट मेमोराइज करना है और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं. 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया. सो टू बिगिन विद वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर. व्हाट इज अ कंप्यूटर? फर्स्ट थिंग, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एवरीवन नो दैट. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेसेस दैट इनपुट, convert the input into a human readable form or in order to give a desired output. Why specifically we are relating term digital with computer here? Because we want to tell you that this particular computer will read and understand and process the instructions and data only on binary language. What is binary language? Binary language is a machine language which comprises of only 2 elements. Binary. Binary. Bi stands for 2. Array stands for elements. Only for with 2 elements, this entire language is designed. That are 0 and 1. So, how we can define digital computer? That digital computer is an electronic device or a machine that receives input in the form of data and instructions from the user, processes that input accordingly to the instructions given by the user, processes the data, and provides output again to the user in the form of useful information. The received input will first convert into the binary language, then processing is performed only in the form of binary language, and the result which is generated for the user will also be in binary language. So this is the simple definition of digital computer. For the entire functioning of computer, it is very important for any machine, it is very important to know 3 words: IPO, input, processing, and output. Here a diagram is given to you. Input. First input, then process, then output. All the machinery, all the design, all the digital systems work on this principle, IPO. अगर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आप एज अ यूजर इनपुट किसी सिस्टम को, किसी मशीन को नहीं देंगे, तो प्रोसेसिंग किस पे अप्लाई होगी? दैट इज अ क्वेश्चन. प्रोसेसिंग होगी, फिर आप प्रोसेसिंग अप्लाई कर क्यों रहे हैं? आप सीरीज ऑफ एक्शन, सर्टेन एक्शंस या प्रोसेसिंग कर क्यों रहे हैं इनपुट पर? बिकॉज यू वांट अ सर्टेन आउटपुट. तो ये तीनों बहुत एसेंशियल स्टेप्स हैं. स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 प्रोसेस, स्टेप 3 आउटपुट.
This definition is explained with the help of this diagram. First, data or instructions will be given as input to the system. This system will process the input accordingly to the instructions it has received from the user, and then after processing, an output or a set of output will get generated in the form of useful information. Who will be at the receiving end here? Output here is generated for whom? Who will read this output? Only user. User we can say, or outer world we can say. So always keep in mind, to understand the functioning of any machine or system, it is essential to keep in mind these 3 points, 3 terms: IPO, input, processing and output. All the functioning, all the programming will be very easy if you consider these 3 principal points. IPO. Then moving towards this particular topic, which is very important for semester point of view, for sessional point of view. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके लास्ट 7-10 ईयर्स से हर एक सेमेस्टर में आ रहा है, ऑलमोस्ट हर एक सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है, एंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको 7 मार्क्स अलॉटेड हैं ही हैं. तो आप इतना सिंपल क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, फंक्शनिंग पता होनी चाहिए. We will discuss components of digital computer with the help of this diagram. All the processing, any machine will work, its functioning will begin only if input in any form will be given to it. There are 4 units: input unit, output unit, and this particular section is dedicated for processing. Storage unit and central processing unit combiningly is able to process the result. This particular area, these 2 units are combining, associated with each other in order to perform processing. How it is possible? How they are doing? First, come to input units. What is the functioning of input units? First, a data or data in the form of raw facts or instructions. Not only data, instructions, any command. जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं कि इनपुट यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है इनपुट यूनिट क्या कर रही है, इनपुट रिसीव कर रही है. Those units which are specifically designed to receive input and instructions from the user. वो इंस्ट्रक्शन, वो इनपुट, वैल्यूज भी हो सकते हैं. आप कीबोर्ड के थ्रू कोई बटन प्रेस करके भी कोई डेटा इनपुट करा सकते हैं, या आप टच स्क्रीन या डबल क्लिक, सिंगल क्लिक के थ्रू भी कोई इनपुट दे सकते हैं. जब आप सिंगल क्लिक, डबल क्लिक या टच स्क्रीन है, अगर आपकी मॉनिटर जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है, तो आप टच देकर अपने फिंगर का या पाम का या हैंड का जो भी आप उसे फीड कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंस्ट्रक्शन. इनपुट, बट सब क्लास क्या हो इसकी, इंस्ट्रक्शन. एंड अगर आप कोई वैल्यूज जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स करा रहे हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स करा रहे हैं, या आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं, उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, तो व्हाट विल इट बी, डेटा. ठीक है. अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं 2 sets of 2 different connections we are using. तो जहां पर जो कनेक्शन स्टैब्लिश करा गया है, मार्क करा गया है, आपको वही यूज करना है क्योंकि उनकी अलग सिग्निफिकेंस है. तो यूजर से इनपुट यूनिट को कुछ डेटा रिसीव हुआ. ठीक है. अब वो डेटा कहाँ जाएगा? 2 यूनिट्स हैं, इंटरकनेक्टेड यूनिट्स हैं. फर्स्ट इज स्टोरेज यूनिट, सेकेंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सपोज आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? आप कैलकुलेट करना चाहते हो 2 + 4 × 6. आप ये एक इक्वेशन कैलकुलेट करना चाहते हो. आप प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कर रहे हो. आपने एक प्रोग्राम लिखा, सी प्रोग्राम लिखा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. आप सी प्रोग्राम लिखा, आपने उसमें एक लॉजिक लिखा, लॉजिक एक इक्वेशन लिख दी.
या क्या हो सकता है, आपने सिंपल अपने डेस्कटॉप पे गए, आपने वहां पे कैलकुलेटर ऐप ओपन करी, ठीक है, एक फीचर ओपन करी और उस डेस्कटॉप पर आपने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी 2+4 मल्टीप्लाइड बाय 6। दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आप प्रोग्राम में कोई लॉजिक लिख रहे हैं या आप डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में कैलकुलेटर ऐप ओपन करके सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपने टाइप करा 2, 4, 6, फिर उनके बीच में आपने एसोसिएट करा, 2 और 4 के बीच में एडिशन हो रहा है, 4 और 6 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाया, तो आपने वहां पे क्या हुआ, सेट ऑफ डेटा आपने फीड कर दिया कीबोर्ड के थ्रू, तो वो क्या हो गया, डेटा। अब कोई भी आपको कोई एक क्वेरी देता है, किसी पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई क्वेरी सॉल्व करने के लिए दी, ठीक है, या एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, कोई बात कही, ठीक है, वर्बली कही, चाहे एक क्वेश्चन पेपर फॉर्म में, एक क्वेरी फॉर्म में, एक पेपर के थ्रू उसने आपको वो क्वेश्चन दिया, तो क्या होगा, आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करने से पहले, हम ह्यूमन एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है कि सबसे पहले वो आपके ब्रेन में रजिस्टर होता है, यस और नो, सबसे पहले वो क्या होता है, आपके ब्रेन में रजिस्टर होता है, फिर आप उसे क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप उसे कैलकुलेट करते हो, रजिस्टर हो रहा है, आप थियोरेटिकली उसे या तो पेन पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं या आप अपने ब्रेन में ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वो सबसे पहले अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो उसमें दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट इस स्टोरेज यूनिट की एंड सेकेंडली इस कंट्रोल यूनिट की, सीपीयू की। व्हाट इज दिस, सीपीयू, एंड दिस इज स्टोरेज यूनिट। अभी हम इसका एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, हम सब क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप सपोज ये क्वेश्चन जो है एज इनपुट यूजर से कंप्यूटर को मिली वाया इनपुट डिवाइसेस, अब ये क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले तो एक कमांड मिली, जैसे ही आपने 2+4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंटर प्रेस करा तो तुरंत क्या हुआ, एक ये लॉजिक था, एक प्रोसेसिंग थी, एक कैलकुलेटिव पार्ट था जो कैलकुलेट होने के लिए जाएगा किसके पास, सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा, उसे टेम्परेरीली या परमानेंटली जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी में उसको क्या करा देगा, स्टोर करा देगा। अभी हम ये नहीं डिस्कस कर रहे वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, बस इन जनरल हम बात कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर होगा, स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाएगा। वो जो इक्वेशन थी 2+4 मल्टीप्लाइड बाय 6, उसे मेमोरी में कुछ स्पेस या कोई मेमोरी अलोकेट हो गई, ठीक है। फिर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू बॉड मास और जो भी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है इक्वेशन कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी 2+4 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू बॉड मास, अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 4 6 24, सबसे पहले क्या वैल्यू आई, 24, रिमेनिंग इक्वेशन क्या है, 2+24। तो एंटायर मेन इक्वेशन, मेन प्रॉब्लम क्या थी, 2+4 मल्टीप्लाई बाय 6, वो भी प्रोसेसर ने, सीपीयू ने पहले कहाँ स्टोर करा दी, प्राइमरी में, मेमोरी में, कहाँ स्टोर करा दी, मेमोरी में। फिर वो एक एक कर 1 बाय 1 उस वैल्यू को क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेगा। अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 वो वैल्यू क्या आ गई, सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 6 सॉल्व हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, 24। तो उसने एंटायर इस इक्वेशन को भी स्टोर कराया, प्लस उसने जो बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट 24 आया, इंटरमीडिएट रिजल्ट एज एन वो वैल्यूज या वो रिजल्ट्स जो एक फाइनल रिजल्ट में एड ऑन करते हैं, जिनकी वजह से फाइनल रिजल्ट आया। तो डायरेक्टली तो इसका रिजल्ट आ नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ही तो हुई होगी, कोई ऑपरेटर पहले सॉल्व हुआ होगा, कोई बाद में हुआ होगा। तो कीपिंग इन माइंड दैट प्रिंसिपल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुआ, तो बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट आया 24। चाहे आप पेन पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप अपने ब्रेन में वो सॉल्व कर रहे हैं, आप बस कह रहे हैं अरे मैं तो कर लूंगा, मुझे पेन पेपर की नीड नहीं है, तो सिचुएशन में भी क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर टेम्परेरीली आपने 24 को अपने ब्रेन में अकोमोडेट करा, कुछ स्पेस, मेमोरी स्पेस अलोकेट करा,
तो सेम हैपेंस विद दिस मेमोरी स्टोरेज, इसमें भी क्या होगा, आप 24 को थोड़ी देर के लिए ही सही, बट इसमें क्या कराएंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। आप नहीं करा रहे, कौन करा रहा है ये काम यहाँ पर, प्रोसेसर। किस में करा रहा है स्टोर, मेमोरी में। तो मेमोरी का काम क्या है कि वो प्रॉब्लम को भी स्टोर करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर कर रही है, और वो फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करेगी। 2 + 24, 24 इज हियर इंटरमीडिएट रिजल्ट, और फिर एक और स्टेप रिमेनिंग है, 2 + 24 विल रिजल्ट इन 26। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 26। तो प्राइमरी स्टोरेज ने या मेन मेमोरी ने या स्टोरेज यूनिट में हमारी मेन प्रॉब्लम, देन हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड हमारा फाइनल रिजल्ट, सब प्रोसेसर क्या करा रहा है, 1 by 1 क्या करा रहा है, स्टोर करा रहा है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो होगा वो किसे मिलेगा, अगर आपने इनपुट रिसीव कर लिया, यूजर ने आपको 2 + 4 × 6 या कोई भी और रैंडम प्रॉब्लम उसने सॉल्व करने के लिए दी, प्रोसेसर ने उसे सॉल्व भी कर लिया सक्सेसफुली, करेक्टली, एक्यूरेटली उसने सॉल्व भी कर लिया, बट वो रिजल्ट उसने यूजर को वापस नहीं दिया, यूजर को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा रिजल्ट, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने कमांड दी, बट वो रिजल्ट आपको अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, कंक्लूड क्या करोगे, अरे ये डिवाइस हैंग हो रहा है, अरे कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, कैलकुलेटर ही खराब हो गया, डेस्कटॉप ही खराब है हमारा, आप यही एज्यूम करोगे ना। तो एक प्रॉपर प्रोसेसिंग जो होगी, एक प्रॉपर फ्लो जो होगा, आपका एग्जीक्यूशन जो होगा प्रॉब्लम का, उसमें एसेंशियल क्या है कि जब तक यूजर को आउटपुट नहीं मिलेगा हम प्रोसेस को कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो रिजल्ट 2 + 4 × 6 पर सारी प्रोसेसिंग हुई एंड साइमल्टेनियसली हम उसे मेमोरी में स्टोर भी करा रहे हैं। फिर वो रिजल्ट हमें 26 कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फॉर डिजिटल कंप्यूटर। अब हम इसकी सब क्लासेस, हम इसे इन डेप्थ पढ़ेंगे सब क्लासेस में कि एक्चुअल में डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैसे करते हैं। सो हियर आई एम एंडिंग माय फर्स्ट वीडियो। The remaining part, the thorough discussion of the all other units, we will discuss in second part of this lecture. Okay, thank you.